स्वागत है। आज शहीद दिन है और कांग्रेस पार्टी की ओर से अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और नमन करते हैं। व्यापन का एक बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है। हमारे सीनियर आपके साथ उसी विषय पे बात करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा दिग्विजय सिंह जी साहब को कि आपसे संबोधित सर आ जाइए सर बीच में। ठीक है। आदरणीय साथियों, व्यापक का प्रकरण आप सब लोगों को जानकारी है ही, और मैंने एक और पत्र लिखा है चेयरमैन SIT को, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो आपके संज्ञान में है ही। आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार कहा था कि एक एफिडेविट देके कहा था कि इसमें टेम्परिंग हुई है, और एफिडेविट के साथ साथ हमने फिर ये महसूस किया कि किसी ऑथेंटिक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से इसमें वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए। ट्रूथ लैब एक ऑथेंटिक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जो कि हैदराबाद बेस्ड है। उसके चेयरमैन जो हैं मिस्टर गांधी, he has been director of the Andhra Pradesh Forensic Science Laboratory, and they have on the governing body retired Chief Justice of India Shri Venkat Jalaya ji and two other Supreme Court judges, two other former High Court Chief Justices and eminent people. The authenticity of the Truth Lab Forensic Laboratories reports have been upheld in the High Court and Supreme Court as authentic. So therefore we got the authenticity of the artist data that we had with us, and that has been authenticated by Truth Lab. The representative of Truth Lab, Sir Chetan Kumar, is with us. If need be, he can also say a few words if need be. In the meantime, we will give you a presentation. Because presentation is just coming. Till then, Mr. Vivek Tankha will give you a background of chain of events and how this has happened and how this has been manipulated. How the evidence has been tampered, of course, with the connivance of the state government. From day one, we have been saying that the case should be referred to the CBI, because the special task force, which is investigating under the overall supervision of the High Court, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur, through a special investigative team appointed by the Madhya Pradesh High Court, is manned by police officers of Madhya Pradesh cadre, whose confidential report is written by the Chief Minister. How can any officer whose confidential report is written by the Chief Minister ever investigate the Chief Minister? And it would have been, in the thickness of things,
that the case should have been referred to the CBI. Now, even a case like suicide of an officer in Bangalore, the BJP made a huge issue asking for a CBI investigation, and the state government, the Congress party government in Karnataka, has referred the case to the CBI today. Even the suicide of Dean of the Medical College, Jabalpur, who was in charge of investigating and also taking action against the more than 1,000 Munna Bhais of Vyapam who had impersonated and taken admissions in the medical college. The state government did not take even 24 hours to refer that case to CBI. But a case where more than 1,400 people have been arrested. A case where 1,000 students and their parents are under arrest. Ex-minister is behind bars. The officers of the Raj Bhavan and officers of the CN Secretariat are behind the bars. Officers related to this Vyavasayik Pariksha Mandal, Vyapam, are behind bars. The state government does not want the case to go to CBI. Now I'll hand over this case to this whole thing. Are you ready with the presentation? I'll hand it over to Mr. Vivek Tanka, who will be briefing you on each slide of the presentation in front of you. Thank you. Good evening, friends. Namaskar, मित्रों. व्यापम का सच. Mr. Vivek Tanka is a senior advocate in the Supreme Court. He was the Advocate General of Madhya Pradesh during my tenure and was also the Additional Solicitor General in the UPA government. And now he is helping us out in this case. व्यापम का सच एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है मध्य प्रदेश में, जहां एक पूरी जनरेशन हैज लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी. आपको यकीन नहीं होगा कि 1887 people have been arrested in this case so far, and this is only 10% of Vyapam. According to STF, 717 people need to be still arrested. ये इतना बड़ा इशू है, और इसमें जब अभी मेन इश्यूज पे तो इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू अस, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा ध्यान था कि हम मेडिकल एडमिशन के स्कैम को इन्वेस्टिगेट करें. फैक्ट यह है कि मेडिकल एडमिशन से बड़ा स्कैम है सर्विसेज में, ट्रांसपोर्ट में, पुलिस में, एक्साइज में, पटवारी में, वेट्स एंड मेजर्स में, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एटलीस्ट 11 सर्विसेज के रिक्रूटमेंट पिछले 5 साल से व्यापम के माध्यम से हो रहे हैं, और उनके उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि मेडिकल एडमिशन पे दिया जा रहा है. बच्चे और पेरेंट्स जो मेरे हिसाब से विक्टिम्स थे इस क्राइम के, लार्ज स्केल में बच्चों को अरेस्ट किया गया. आज भी बहुत सारे बच्चे जेल में हैं. पेरेंट्स को अरेस्ट किया गया, मिडिलमैन को कुछ अरेस्ट किया गया, अब कुछ बड़े प्रमोटर्स को अरेस्ट किया गया. बट जो सबसे बड़ा इशू है कि ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी हुई, ये पूरा जो एक सिस्टम
ऑफ करप्शन डेवलप हुआ 2007 से और जो 2013 तक चला, इसके रूट पे कौन जाएगा? कैसे एक के बाद एक सर्विसेज ट्रांसफर हुई टू व्यापम फॉर रिक्रूटमेंट, कैसे ये रिक्रूटमेंट हुए, इसके तह पे जाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें फिर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर जितना हुआ है वो भी बहुत बड़ा है, और उतना मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि व्यापम कैसे स्टार्ट हुआ। 6 जुलाई 2013 को आईजी इंदौर को खबर मिली कि कई इंदौर के होटल्स में स्कोरर्स एंड इम्पोस्टर्स जो कैंडिडेट्स की ग्रुप पे बैठ के पेपर्स सॉल्व करते हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं और ठहरे हुए हैं। तो रेड होता है, उन लोगों को पकड़ा जाता है। 7 जुलाई 2013 को एक इंदौर पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर इंदौर में एक एफआईआर रजिस्टर होती है 420, 419, 467, 468। ये 9:25 सुबह ये एफआईआर रजिस्टर होती है 7 जुलाई 2013। इसके बाद इंदौर पुलिस जाती है भोपाल, क्योंकि व्यापम की परीक्षाएं भोपाल से होती है, भोपाल में उसका हेड ऑफिस है, और जितना ये मैनिपुलेशन हो रहा था ये भोपाल से हो रहा था। एग्जामिनेशंस में लोग ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और दूसरे प्लेसेस में पोस्टर बैठते होंगे, बट उसका पूरा मैनेजमेंट भोपाल से होता है। और भोपाल से दे रिकवर अ हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क है मिस्टर नितिन महिंद्रा की कंप्यूटर की, जिसमें ये सब एक्सेल शीट जिसको लेके आज इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, ये एक्सेल शीट रिकवर हुई है। ये एक्सेल शीट लेके इंदौर पुलिस आ जाती है भोपाल से इंदौर, और 18/7/2013 डेट करिए, नोट बहुत, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 18 जुलाई 2013 को 4:20 पे पहली बार ये जो डिलीटेड डाटा है, क्योंकि नितिन महिंद्रा ने ये डाटा डिलीट कर दिया होगा जब तक पुलिस पहुंची। ये नितिन महिंद्रा इज द चीफ कंप्यूटर कंट्रोलर एनालिस्ट ऑफ व्यापम। वो व्यापम का जो पूरा कंप्यूटर है उसको हैंडल नितिन महिंद्रा करता था, एंड ही इज बिहाइंड बार्स फ्रॉम डे वन। तो नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर से ये रिकवरी होती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर का नाम 48 टाइम्स है इन वन ऑफ द एक्सेल शीट्स। हम तो अभी एक ही संविदा शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई दूसरे केसेस में तो अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। फिर इंदौर पुलिस एक सीजर मेमो प्रिपेयर करती है 4:30 बजे, और उस सीजर मेमो को चार्जशीट के साथ फाइल किया गया है कि हमने एक हार्ड डिस्क 4:30 बजे रिकवर की। फिर एज पर ट्रूथ लैब्स, जिसके रिप्रेजेंटेटिव जहां बैठे हैं, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड फॉरेंसिक डाटा लेबोरेटरी है, 6:43 पे ये हार्ड डिस्क फिर से लोग वॉच करते हैं, तो ये तो पुलिस की कस्टडी में है। और उसके बाद 8 बजे उसी दिन ये हार्ड डिस्क टैंपर होती है, और नए नेम, कुछ नेम सब्स्टिट्यूट होते हैं और कुछ नेम ऐड किए जाते हैं। फिर ये 22 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक ये टैंपर हो चुकी है, फिर 22 तारीख को ये टैंपर्ड हार्ड डिस्क या दूसरी वो डिस्क हो जिसपे कॉपी किया हो, वो डिस्क गांधीनगर गुजरात भेजते हैं, जिसको क्लोन किया जाता है, और उस हार्ड डिस्क की जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे चार्जशीट्स फाइल होती है 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को जो टैंपर्ड हार्ड डिस्क है, जो गांधीनगर भेजी गई थी, जो टैंपर्ड हार्ड डिस्क है जो गांधीनगर भेजी गई थी, उसके बेसिस पे चार्जशीट फाइल हुई है। इस बीच में दिग्विजय जी को जो ओरिजिनल डिस्क, जो एक्सेल शीट है, जो 18 जुलाई को 4:20 पे रिकवर हुई थी शाम को, उसकी कॉपी मिल जाती है। तो 16 फरवरी 2015 को अभी आप एक एफिडेविट के साथ एसआईटी पे जाते हैं। एसआईटी इज अ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम
ये हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म किया था, जिसका काम था टू मॉनिटर एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन। एसटीएफ इज द पुलिस एजेंसी जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्स। और इसका एक्सेल शीट पे चीफ मिनिस्टर का नाम 48 टाइम्स एज अ स्पॉन्सर ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स। 20 अगस्त को जो विसल ब्लोअर है वो दिल्ली हाई कोर्ट जाके पिटीशन लगाता है और कहता है कि मेरी लाइफ डेंजर में है, लाइफ एंड लिबर्टी इज इन डेंजर, प्लीज प्रोटेक्ट मी। और दिल्ली हाई कोर्ट उस दिन एक ऑर्डर पास करता है प्रोटेक्शन का एंड ऑल्सो लिबर्टी देता है कि अगर आप चाहो तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कर सकते हैं। 24 फरवरी को दिग्विजय जी रिक्वेस्ट करते हैं एसआईटी को कि मेरे पास और मेरे विसल ब्लोअर के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम आपको दे सकते हैं जिससे कि यू कैन अनरावल द ट्रूथ, क्योंकि विसल ब्लोअर भोपाल नहीं आ सकते। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दिल्ली आ जाएं सो दैट वी कैन असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। ये 24 तारीख को। 9 तारीख या 8 तारीख वॉज फिक्स्ड इनफॉर्मली बिटवीन सिट एंड us that they will come and हम उनको एविडेंस प्रोड्यूस करके देंगे इनके लिए। 8 तारीख किस मंथ? फरवरी, मार्च अभी। इस बीच में बिफोर द सिट would come to Delhi, एक STF moved an application before the High Court and says कि सिट is only a watchdog। उसका काम नहीं है to go to Delhi to collect evidence। अगर आपको एविडेंस देना है तो आप आके STF को दीजिए। तो हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है मॉनिटरिंग में कि SIT will not go to Delhi, it is a watchdog। अगर आपको कुछ भी चीज प्रेजेंट करनी है तो आप SIT को भोपाल में दीजिए और SIT उसको STF को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। और इसी दरमियान 24/2 को एक नई FIR फाइल होती है, रजिस्टर होती है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल को अक्यूज बना दिया जाता है अंडर सेक्शन 417, 420, 467, 468, 471, 477A, 120B, सेक्शन 65 एंड 66 IT एक्ट एंड PC एक्ट दुनिया भर। जब राज्यपाल जी को एक्यूज बना दिया जाता है करीब 100 और लोगों के साथ, तो वो हाई कोर्ट जाते हैं और 9 तारीख को हाई कोर्ट उनकी याचिका पे नोटिस इशू करता है, जो याचिका की अब अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल को भी रिक्वेस्ट की गई है टू असिस्ट द कोर्ट। अब इस बीच में जब एक्सेल शीट हम 16 फरवरी को SIT को दे के आए थे, जिसके बारे में बोला जा रहा था कि आप इस एक्सेल शीट प्रोड्यूस करने से क्या होता है, आप इसको प्रूव करिए कि ये जेन्युइन एक्सेल शीट है, ये एक्चुअल एक्सेल शीट है। तो ये एक्सेल शीट और जो दूसरी एक्सेल शीट्स हैं, जो टैम्पर्ड एक्सेल शीट्स हैं, ये सब एक्सेल शीट विद द सॉफ्ट कॉपी बैंगलोर ट्रूथ लैब को भेजी जाती है, क्योंकि ट्रूथ लैब एक ऐसा क्रेडिबल लैब है जिसकी रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स को कोर्ट्स में और इवन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत रिस्पेक्ट से देखती है। और उनकी जो रिपोर्ट है 18 मार्च को एक काफी विस्तार से लिखी गई रिपोर्ट है, जिसमें हर प्रकार की जानकारी है कि 4 बजे किस कंप्यूटर से ये जानकारी रिट्रीव हुई, किसका मतलब वर्चुअली किसका कंप्यूटर था, और हार्ड डिस्क का नंबर क्या था, कंप्यूटर का नंबर क्या था, क्योंकि उनके पास जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं ये कभी जाते नहीं है। अगर आप इसके मिरर इमेज उस पर कर लीजिए, तो जिसने भी मिरर इमेज इसकी सेव की थी उसने बड़े होशियारी से खाली कई फाइल्स को सेव किया था और इस फाइल में भी कई और डॉक्यूमेंट्स को सेव किया था। तो सम ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स वे सेंट टू ट्रूथ लैब और 18 तारीख को एक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट उनकी आ जाती है। जब वो रिपोर्ट आ जाती है
तो 20 मार्च को फ्राइडे को जो विसल ब्लोअर है वो ये पूरी ओरिजिनल रिपोर्ट जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल रिपोर्ट है विद द ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव, ये सब दिल्ली हाई कोर्ट पे जाके इन अ पैक्ड सील एनवेलप पेश कर देता है और कहता है कि साहब अब आप इसको जैसा चाहे डील कर लें, सो दैट एविडेंस इज सिक्योर। इसी एविडेंस की एक सर्टिफाइड कॉपी भी हम लोग के पास है, आपकी 3-4 हम लोग मंगवाते हैं। एक सर्टिफाइड कॉपी आज दिग्विजय जी ने एसआईटी को विथ हिज लेटर आज भेजी है और उसमें यह कहा है कि अब इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि ये जो मैंने एक्सेल शीट, इन्होंने जो एक्सेल शीट एफिडेविट के साथ एसआईटी को 16 फरवरी को प्रोड्यूस की थी वो सच है, उसको झुटाया नहीं जा सकता। और तीसरी बात, जो आपने एक्सेल शीट यूज की है जिसमें आपका नाम 48 टाइम्स डिलीट हो चुका है और उसकी जगह दूसरे नाम भी ऐड किए गए हैं, जैसे उमा जी का नाम कुछ में ऐड किया गया, कहीं राजभवन लिख दिया गया, कहीं एमएस लिख दिया गया, मिनिस्टर 1, 2, 3 होता था इन द ओरिजिनल, उसको चेंज करके आपने मिनिस्टर कर दिया क्योंकि 3-4 मिनिस्टर उस पर फंसते हैं। तो वो सब चीजें अब प्रूव हो गई हैं कि ये जो एक्सेल शीट है, जो ओरिजिनल एक्सेल शीट है, ये कंप्लीटली ट्रू है। अब मुद्दा ये है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद एसटीएफ को क्या करना चाहिए। तो दिग्विजय जी ने अपनी जो एक पत्र भेजा है एसआईटी को विद कॉपी टू एसटीएफ, उसमें डिमांड की है tampering is a very serious offense, fabrication of evidence is a more serious offense। अब इन ऑफेंसेस के लिए मध्य प्रदेश को चीफ मिनिस्टर को चार्ज करना चाहिए। इंदौर पुलिस के और जो दूसरे भी पुलिस कर्मी होंगे जिन्होंने इसमें असिस्ट किया होगा उनको भी चार्ज करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप इस लैब की ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं, करवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। इस लेटर में आप क्योंकि जब जो गुजरात में जो एक्सेल शीट भेजी गई थी टैब पर, उसमें कभी कोई हैश वैल्यू थी नहीं, तो बिना हैश वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज नेवर एडमिसिबल, क्योंकि आप हैश वैल्यू नहीं होगी उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप कभी भी टैम्पर कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल एक्सेल शीट रिकवर हुई है बाय ग्रुप लैब सर्टिफाई हुई है, उसमें हैश वैल्यू है और उसमें और जितनी जरूरी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से सिद्ध करती हैं अबाउट रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड करेक्टनेस ऑफ द शीट, उन्होंने वो बातें सब लिखी। इट्स अ वेरी डिटेल्ड 20 पन्ने की रिपोर्ट है जो कि हाई कोर्ट के सामने और सिद्ध के सामने पेश कर दी गई है। तो आज ये अब एसआईटी के लिए और एसटीएफ के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि क्योंकि एक लीगल एविडेंस उनके सामने एक कंप्लेनेंट के तौर से मिस्टर दिग्विजय सिंह ने पेश की है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र एग्जामिन करें और उस पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बाध्य होकर हमको हायर कोर्ट में जाके कुछ ना कुछ कार्रवाई फिर से करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, दिस इज द ट्रूथ ऑफ व्यापक। जहां तक और अदर स्पीकर्स दे विल टेल यू। आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी लगा था और क्योंकि 15 मार्च एक डेट फिक्स की गई थी ऑन देयर स्टेटमेंट कि वो 15 मार्च तक सब चार्जशीट फाइल कर देंगे, बट क्योंकि इतना विशाल इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन है तो एसटीएफ ने एक एप्लीकेशन बुक की थी कि 6 महीने का टाइम उनको और चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 4 महीने का टाइम और दिया है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। Total presentation will be given to you, hard copy will be given to you, and also it will be emailed to you on your email. But hard copy will be distributed from the AICC media office. Now I request Sanjay ji to make that. आज जो तथ्य आप लोगों के सामने रखे गए हैं, इससे ये बात प्रमाणित होता है कि किस तरीके से इस कांड में कवर अप करने की कोशिश की गई और हमारी एक ही मांग है
कि अगर हम पारदर्शिता चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार इस इंक्वायरी और कार्रवाई को सीबीआई के हाथ में सौंपने से इनकार कर रही है। हमने भोपाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इसी विषय पर, क्योंकि ये एक बड़ा संदिग्ध मामला है जिसके साथ लाखों नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और वहां भी मैंने कहा था कि जहां एक तरफ हजारों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उनके भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है। जो लोग इस कांड के पीछे छिपे हुए हैं, उनके विरुद्ध बड़े बेमुश्किल से हिचक से करके कार्रवाई हो रही है। तो हमारी मांग रही है, कोर्ट में भी हम लोग संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गए हैं कि अगर पारदर्शिता हम लोग चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, तो इस इंक्वायरी को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि जो सत्य है वो जनता के सामने आ सके।